Dear students, in the previous lecture we have discussed about the eukaryotic cell. We had started with the eukaryotic cells, that eukaryotic cells can be of different types. That is, protista is included in eukaryotes, fungal cells are included in eukaryotes, plant cells as well as animal cells are considered in eukaryotes. We also observed the structure of a plant cell and the structure of animal cell. We had observed that what components are present in a plant cell and in an animal cell. In these components, we have differentiated some points, that the presence of large sized vacuoles was a characteristic of plant cell, whereas the presence of centriole was a characteristic of animal cell. Presence of cell wall is in only plant cells, whereas presence of only cell membrane and not the cell wall was the character of animal cell. And therefore, we can give several points of differences between the plant cells and animal cells. Now we are going to discuss about the whole eukaryotic cell with each and every component in detail. We had started with the term cell membrane. The cell membrane, which is also known as the plasma membrane or the plasma lemma. And the first time the term was given by Nageli and Kramer. However, the cell membrane was discovered by Schwann. So these were some of the points that were being discussed in the previous lecture. Now we are going in detail about the cell membrane. So cell membrane is a structure which cannot be observed in light microscope and is observed in इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते नहीं है. सेल मेम्ब्रेन हमें प्रॉपरली अगर देखना है तो इट कैन बी ओनली ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. On observing in an electron microscope, it is seen that the cell membrane is a tripartite or trilaminar structure. मतलब इसमें 3 layers देखने को मिलते हैं. So we say that it is a trilaminar, or you can say tripartite structure. तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं. तो एक्चुअली अब हमें देखना चाहिए that what are cell membranes made up of. So first thing we are going to discuss about the cell membrane is the composition of the cell membrane. So let us have a look on composition of cell membrane. Cell membrane is made up of 4 major components. That is, it consists of proteins, it consists of lipids, carbohydrates and water. About 20% is the water in cell membrane. हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, राइट. इट इज नाइदर वेरी सॉलिड एंड नॉर वेरी लिक्विड. तो ये जो सेमी फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. इट हैज अबाउट 1 to 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, बट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इज वेरी लेस. 20 to 70% will be what? Proteins and lipids. 20 से लेके 70%. ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का परसेंटेज हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं because the ratio of proteins to lipids that varies in every cell.
Depending upon the functioning of that cell, amount of protein and the amount of lipid is variable. And therefore, we mention this point that the ratio of proteins to lipids is variable and depends upon the function of cell. मतलब सेल के फंक्शन के बेसिस पे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट. जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, in the human RBC, which is also known as erythrocyte, which is also known as erythrocyte. तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें प्रोटीन्स आर नियरली 52%. प्रोटीन्स कितने हैं? 52%. whereas lipids are only 40%. तो हम ऐसा बोल रहे हैं that the amount of proteins and lipids is going to be variable, and this amount is going to depend upon what? It is going to depend upon what the cell is actually functioning. राइट जैसे कि अगर फैट सेल्स की बात करें तो फैट सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारी स्किन के नीचे होते हैं. दे मेक अ टिश्यू विच इज कॉल्ड एडिपोस टिश्यू. तो ये टिश्यू में फैट्स ज्यादा होंगे, मतलब प्रोटीन का अमाउंट बहुत ही कम होगा. वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि आरबीसीज जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स. तो आरबीसीज में प्रोटीन का अमाउंट 52% है, जबकि लिपिड्स का अमाउंट कितना है? 40%. सिमिलरली अगर हम दूसरे सेल्स देखने जाए जैसे कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर और यू कैन से माइलिनेटेड नर्व सेल, मतलब नर्व सेल जिसके सराउंडिंग एक माइलिन, एक लिपिड लेयर है, लिपिड की शीट है, वैसे नर्व सेल्स को माइलिनेटेड कहते हैं. तो ये जो माइलिनेटेड नर्व सेल है, इट इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड्स, nearly 70% of lipids, whereas the amount of proteins is hardly 20%. तो प्रोटीन्स उसमें बहुत कम होते हैं, लिपिड का अमाउंट ज्यादा है. इसीलिए हमने लिखा that the ratio of the proteins to lipids is going to be variable. अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, these are mainly oligosaccharides. These are mainly oligosaccharides. What are oligosaccharides? देखो स्टूडेंट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड. अगर एक छोटी चेन है जिसमें अबाउट 5 to 7 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ऐसी छोटी चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज oligosaccharides. But if there are thousands of monomer units together, then it is known as polysaccharide. जैसे कि ग्लूकोज का एक बहुत ही लंबा चेन हो तो that is going to form starch. तो ग्लूकोज का चेन that forms a starch, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीसैकेराइड का. पर अगर 4 से 5 ग्लूकोज यूनिट का एक छोटा सा चेन हो तो वो स्मॉल चेन्स को क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होंगे वो मेनली कौन से होंगे? ओलिगोसैकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? द लिपिड विच इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इज नोन एज phospholipid, or it is also known as, phospholipids are also known as phosphoglycerides. So either you can use the word phospholipids for it or phosphoglycerides. प्रोटीन्स जो होंगे वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होंगे, जैसे कि some proteins will be globular, मतलब कई प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो सर्कुलर होंगे.
कई प्रोटीन्स ऐसे हो सकते हैं जो होते हैं फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक. So the proteins observed are either globular proteins मतलब spherical या circular proteins होते हैं, either they can be fibrous मतलब fiber like proteins हो सकते हैं, even some of the proteins will be structural that are going to give a structure to the cell, right, a structure to the plasma membrane, that structural proteins. Even some of the proteins can be enzymatic मतलब enzymes in its function, that is they function as an enzyme. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, और एल्स वी कैन से दैट दे कैन इवन बी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट विच टाइप ऑफ लिपिड्स आर प्रेजेंट. हमने ये तो बात कर ली दैट द लिपिड्स प्रेजेंट आर नोन एज व्हाट, phospholipids, or you can say phosphoglycerides. But these lipid molecules, phospholipids, in nature they are amphipathic. In nature these phospholipids are amphipathic. तो हम ये देखते हैं that what is amphipathic. तो first of all lipids, the lipids which are present are amphipathic in nature. Amphipathic means the lipid molecules will be having two parts, a head part and a tail part. Lipid molecules, that is phospholipids, are having two parts, head part and a tail part. The head part of the lipid is हाइड्रोफिलिक. विच पार्ट? हेड पार्ट. हेड पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक. और हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मतलब लविंग. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द लिपिड विच इज गोइंग टू बी वाटर लविंग. Whereas you can observe this lower part, that is the tail like structure. So this tail is actually hydrophobic. It is hydrophobic. Hydro means water, phobic means phobia, away. So this part is water hating. मतलब लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कहीं पे भी पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाला. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुड नॉट गेट डिसॉल्व विद इन और डिफ्यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म. इट शुड रिमेन एज एन डिस्टिंक्ट लेयर. तो वो डिस्टिंक्ट लेयर कैसे रह सकता है? ड्यू टू द वेरी स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स विच इज इट्स एम्फीपैथिक नेचर. Amphipathic is a combination of hydrophilic and hydrophobic groups. Head part is going to remain towards the water, whereas the tail part is going to remain away from the water. So actually when we say that plasma membrane is a bilayer मतलब दो layers है, तो उसमें कैसे present होंगे? There will be heads which are facing outside. Heads are going to, this side of head is going to face what? Outside the cell. This part of the head is going to face the cytoplasm, which already contains large amount of water. But the tail parts are going to remain in contact of each other, and the tail parts are not going to be exposed to water. देख लीजिए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल के बाहर क्या होगा? इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स होंगे. तो ये जो हेड पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में होगा? बाहर के इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स के कांटेक्ट में. जबकि ये जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टू द साइटोप्लाज्म. बट द टेल पार्ट व्हिच इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट is not going to be exposed to any of the water surfaces because it is hydrophobic. And due to this nature, due to this hydrophilic and hydrophobic group, the plasma membrane remains as a distinct layer without getting mixed with anything.
इसीलिए यहाँ पे 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन में, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर। और उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20 to 90% जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, प्रोटीन्स और लिपिड से। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कंपोजिशन की, राइट। एक बार वापस थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं होता, उसे देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पे ये पता चला था दैट इट इज अ ट्राइलैमिनर या ट्राइपार्टाइट, 3 लेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। कंपोजिशन में होता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर। उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम होते हैं 1 to 5% और वाटर जो होता है वो अबाउट 20% होता है। प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो अमाउंट होता है वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। आरबीसीज है तो उसमें 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स है, जबकि माइलिनेटेड नर्व सेल जिसमें लिपिड कंपोनेंट ज्यादा होता है, तो माइलिनेटेड नर्व सेल में 70% लिपिड्स हैं और 20% सिर्फ प्रोटीन्स हैं। आगे देखने जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो छोटी चेन्स के फॉर्म में होते हैं, ब्रांच चेन्स होती है या अनब्रांच चेन्स भी होती है। और ये जो चेन्स होती है वो किसकी होती है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 to 7 मोनोसैकेराइड्स, मतलब मोनोमर्स, छोटे मोनोमर्स की छोटी चेन, उसे कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। लिपिड्स जो होते हैं वो मेनली कहा जाता है फॉस्फोलिपिड्स या तो फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, दैट व्हाट इज एक्चुअली फॉस्फोलिपिड केमिकली स्ट्रक्चर नोन एज, वो भी हम आगे बात करेंगे। प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, फाइब्रस, स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक। कोई भी तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिपिड्स की है कि लिपिड्स का नेचर एम्फीपैथिक होता है, मतलब उनमें होते हैं पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल्स, जिसे हम ये भी कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग ग्रुप, दे आर कलेक्टिवली नोन एज एम्फीपैथिक. So this side of the lipid, that is the head part, is going to be exposed to the outside of the cell. This side is going to be exposed towards the cytoplasm, and in between are the chains of fatty acids, मतलब long chains of the lipids. और ये जो part है, it never gets exposed to water. अब हम आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। तो ये मॉडल्स क्या समझाते हैं, दैट विच मॉडल इज एक्चुअली वेरी करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो देखेंगे। पर उसके पहले हम 2 मॉडल्स पहले देखेंगे, दैट इज डैनियल एंड डैवसन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल फॉर प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So after studying the cell membrane structure, that cell membrane is a trilaminar structure. Cell membrane is made up of proteins, lipids, carbohydrates and water. Next was that there was a research going on that how actually the cell membrane looks. So for the structure of cell membrane, different researchers have put forward different types of molecular models that were given for the cell membrane structure. मतलब अलग अलग रिसर्चर्स ने अपनी अपनी तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था. And in this, they were trying to study that how are these lipids and proteins actually arranged in the structure of the cell membrane. So different types of models were being proposed by different researchers. The oldest model, which was given in the year 1935, सबसे पुराना मॉडल था जो 1935 में दिया गया था, वो मॉडल जो पार्शियली एक्सेप्टेबल था. वैसे तो ये मॉडल्स अभी भी जो है वो करेक्ट नहीं है 100%, बट फिर भी पार्शियली करेक्ट जिसे माना गया था वैसा मॉडल दिया था 1935 में डैनियल एंड डैवसन ने. उसके बाद इन द ईयर 1959 देयर वाज एन अनदर रिसर्चर जिसको कहते हैं रॉबर्टसन, और रॉबर्टसन ने अपना मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, which was very similar to Daniel and Dawson model, and this model was known as the unit membrane model. This model was known as the unit membrane model. तो ये 2 मॉडल्स दिए गए थे. The first model that we are going to talk about is the Daniel and Dawson model. तो according to Daniel and Dawson,
what does the structure of plasma membrane look like? So according to him, the plasma membrane consists of a phospholipid bilayer, मतलब अभी हमने बात की दैट फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बाइलेयर, मतलब 2 लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जहां पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक्सपोज्ड हैं, और ये जो फॉस्फोलिपिड के जो टेल्स है, मतलब लिपिड्स के या फैटी एसिड्स के जो टेल्स हैं, दीज टेल्स आर गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू हिम ऑन आइदर साइड्स there is presence of the layer of protein, मतलब ये जो है वो एक प्रोटीन लेयर होगा, ये जो है वो है लिपिड बाइलेयर, और वापस से ये लेयर कैसा हुआ, प्रोटीन का, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो इन नेचर कैसे हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। So this model which was given in the year 1935, according to this model, the plasma membrane consists of 4 layers. According to it, plasma membrane consists of 4 layers. There is a bilayer of phospholipid, and on either side of lipid bilayer there is presence of globular proteins। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल एंड डैवसन यहाँ पे आप 4 लेयर्स देख सकते हो, मतलब ऊपर का लेयर जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन का लेयर होगा, फिर बीच का जो लेयर है वो है लिपिड बाइलेयर, जिसमें आपको याद रखना है ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड्स। सो हाइड्रोफिलिक हेड्स will be facing the protein layer. Same way, the hydrophobic tails are going to be exposed to each other, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी, ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा प्रोटीन का लेयर। तो ये 4 लेयर्स हो गए, बीच में लिपिड का जो है वो बाइलेयर है, दिस साइड ऑल्सो इट इज एक्सपोज टू प्रोटीन्स एंड दिस साइड ऑल्सो इट इज एक्सपोज टू प्रोटीन्स। मतलब अकॉर्डिंग टू डैनियल एंड डैवसन ये जो मॉडल है उसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड्स जो हैं दे आर बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के 2 लेयर्स के बीच में लिपिड का लेयर क्या हो चुका है, सैंडविच हो चुका है, इसीलिए इन्हें लैमेलर मॉडल्स या तो फिर सैंडविच मॉडल्स कहा जाता है। तो ये एक सैंडविच मॉडल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे थोड़ी एडिशनल चीज आपको बता देती हूँ, दैट द बॉन्ड दैट इज द फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग between the protein and this hydrophilic head is the electrostatic force, the force which keeps this heads of the lipids attached to proteins, वरना क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो एक ऐसा फोर्स है जो प्रोटीन के हेड्स मतलब प्रोटीन्स को कनेक्ट करता है with the heads of the lipid, and that is an electrostatic force, whereas between the 2 hydrophobic tails there is a hydrophobic bond. There is presence of a hydrophobic bond between the 2 tails and therefore the 2 tails also remain connected to each other. तो ये हो गया हमारा Daniel and Dawson model. Students, these all models are important in context of your NEET examination, right? These models are not being explained in your textbooks, but before studying the actual true model of cell membrane, it is very important to understand that what other models of cell membrane were being explained, and therefore we are conducting this additional lecture for the same purpose. हम ये इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि करेक्ट मॉडल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि और कौन से प्रपोज्ड मॉडल्स ऑलरेडी हैं और ये प्रपोज्ड मॉडल्स क्या समझाते हैं, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दिस मॉडल एंड व्हाट इज करेक्ट इन दैट लास्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस।
तो अब हम बात करते हैं ऑफ द नेक्स्ट मॉडल जिसे कहते हैं रॉबर्टसन मॉडल या तो फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल जो है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ a slight modification of Daniel and Dawson मॉडल। मतलब डैनियल और डैवसन मॉडल से ही इंस्पायर्ड होके ये रॉबर्टसन मॉडल दिया गया है एंड दिस वाज गिवन इन द ईयर 1959। 1959 में ये डैनियल और डैवसन मॉडल को स्टडी करके आगे ये नेक्स्ट मॉडल समझाया गया है, दैट इज रॉबर्टसन मॉडल। According to the Robertson model also there will be presence of such 4 layers, पर actually उसने क्या कहा था that lipids will be forming a single layer, क्योंकि उसे बाइलेयर कहा जाता है तो उसने ऐसा कंसिडर किया कि उसको एक ही लेयर कंसिडर करते हैं, मतलब एक तरफ प्रोटीन फिर लिपिड बाइलेयर और फिर वापस प्रोटीन। तो उसके मॉडल में अलग क्या हुआ, उसने ऐसा कहा that the proteins present on the either sides are different। अकॉर्डिंग टू डैनियल और डैवसन मॉडल क्या है कि दोनों ही तरफ कौन से प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, जबकि द मॉडल दैट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिपिड bilayer. This was same as Daniel and Dawson model, but in addition he said that the proteins present over here the proteins present on the outer side and the proteins present on the inner side are going to be different। मतलब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर करे तो ये साइड किसे फेस करेगी, सेल के बाहर, और ये साइड किसे फेस करेगी, साइटोप्लाज्म को। तो अंदर की तरफ जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड होते नहीं है, तो ऐसे प्रोटीन्स को कहा जाता है नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन्स। मीन्स ओनली प्रोटीन्स, नो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ जो प्रोटीन्स होंगे वो नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन्स है, मतलब प्रोटीन्स तो हैं पर उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच नहीं है। जबकि ये जो प्रोटीन लेयर है दैट विल बी म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन मींस यहां पे लिख रही हूं प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स ऑन द आउटर साइड, then there is a layer of lipids that is bilayer, and then again there is a layer of non mucoid proteins। मतलब प्रोटीन्स तो है पर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच नहीं है। जबकि डैनियल एंड डैवसन मॉडल में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया गया नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर विल बी 3 लेयर्स। ये जो लेयर है बीच में वो तो वही आ जाएगा लिपिड बाइलेयर। दिस विल बी लिपिड बाइलेयर। ऊपर की तरफ जो है वो प्रोटीन्स होंगे जो अलग है, और नीचे की तरफ जो प्रोटीन्स है वो भी अलग है। पर इन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि प्रोटीन का लेयर, लिपिड का लेयर एंड अगेन अ प्रोटीन लेयर। तो इसे भी हम सैंडविच मॉडल में ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज इन दिस लेयर ऑल्सो द लिपिड्स आर बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द प्रोटीन, इसलिए इसे भी सैंडविच मॉडल कहा जाता है। और एक चीज उसने ये भी बताई थी, ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन, दैट इज द साइज ऑफ दिस लिपिड बाइलेयर इज 75 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, टोटल लेयर इज 75 एंगस्ट्रॉम। मतलब पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो थिकनेस कितनी होती है, 75। और 75 में लिपिड बाइलेयर की जो थिकनेस है वो है सिर्फ 35 एंगस्ट्रॉम। वापिस एक बार बोल रही हूं, पूरे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम, और बीच में जो लिपिड लेयर है उसकी थिकनेस 35, प्रोटीन लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम और इस प्रोटीन लेयर की भी थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम।
सो 20, 20 एंड 35 वैसे करके पूरा एक्सप्लेन किया गया है द होल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब थिकनेस भी एक्सप्लेन की थी, डायमेंशंस भी एक्सप्लेन किए थे रॉबर्टसन मॉडल। फिर भी these models up to certain extent are correct, but there are several things which were not being discussed in these models. तो अब हम आगे चलेंगे सबसे करेक्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो मॉडल जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, एंड दैट इज नोन एज सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल।